everyone. Today we are going to discuss the important MCQ questions from Act 3 Scene 2 of Merchant of Venice. ये second part है MCQ questions का. अगर आपने first part नहीं देखा, so check it out in the description box. The link is already provided there. So guys, let's get into the video. So the first question is, before you venture for me, I could teach you. So यहाँ पे speaker कौन है? The first question is, who is the speaker? Bassanio, Portia, Nerissa और Gratiano. So just tell me the answer in comments. ये extract से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका speaker कौन है, right? समझ में आ गया, right? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका स्पीकर कौन है. जल्दी से कमेंट करके बताओ. Waiting for your answer. Just tell me in comments. So guys, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा Portia. Yes, you're absolutely right. The answer is Portia. That is B. Fine. Moving on to the second part. What does the speaker wants to teach? Speaker क्या सिखाना चाहती है? Right? क्या सिखाना चाहती है? The speaker is Portia. So क्या सिखाना चाहती है और किसे सिखाना चाहती है? Definitely Bassanio. Right? सबको clear है, right? Clear. It's clear, right? Okay. Your options are how to find out the right casket, how to figure out the wrong casket, cannot say, both first and second. So think about this question very keenly. जो दिखता है वो होता नहीं, right? This is a very universal fact. Universal fact है. जो दिखता है वैसा वो होता नहीं है. So think about this question very keenly. ध्यान से सोच समझ के बताओ कि आपको इसका सही आंसर कौन सा लग रहा है, right? So guys, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. Yes. Now why? Because वो चाहती थी कि उसे सही कास्केट के बारे में सिखाए. That means to let him know about the right casket. Apart from this, अगर उसे सही कास्केट के बारे में पता चल गया, then definitely उसे wrong कास्केट के बारे में भी पता चल जाएगा, right? अगर सही पता चल गया है, तो definitely वो wrong कास्केट भी figure out कर लेगा. So interconnected, both are interconnected. That's why option number 4 is absolutely right. Clear? All right. Moving on to question number C. That is, we are moving on to the C part. Your question is, what is the sin the speaker is talking about after these lines? Option देखो. Breaking of the oath, telling the right casket, cheating her father, both A and B. So guys, tell me the answer in comments. मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा. A, B, C, D क्या होगा? Just let me know in the comment section. Fine? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा. A, B, C, D क्या होगा? जल्दी से tell me in comments. So guys, यहाँ पे किस sin की बात की जा रही है? Breaking of the oath, right? And telling the right casket. It will be after all. ये देखो ये वाली जो sentence है ना ये गड़बड़ है. Telling the right casket. It should be telling about the right casket, right? गलत है, right? So ये option भी नहीं होगी. Cheating her father. So ये exactly this is right, but the most appropriate one. We are demanding for the most appropriate one, right? So इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा option number 1, breaking of the oath, right? सबको clear है? Fine. Okay, guys. Now we will be moving on to the next question. So your next question or the next extract is, oh, these naughty times puts bars between the honor and the rights. Fine. ये एक्सट्रैक्ट है. आपको याद भी होगा कि एक्सट्रैक्ट किसने कहा था, कब बोला था, किसको बोला था. ये सब कुछ आपको पता हो जानी चाहिए जैसे आप एक्सट्रैक्ट देखते हो. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज दीज नॉटी टाइम्स मींस? द चॉइस ऑफ कास्केट्स अकॉर्डिंग टू हर फादर्स विल. फाइन. यहाँ पे हर किसको इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पे हर बाय डिफॉल्ट पोर्शिया को, राइट? हर जगह लिखा नहीं रहेगा पोर्शिया या जो भी स्पीकर, तो आपको समझना होगा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पोर्शिया को इंडिकेट किया जा रहा है. क्लियर? सो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन इज हर डेड फादर्स विल, हर लव फॉर बेसानियो, ऑल द अबव. यहाँ पे नॉटी टाइम्स किसको कहा जा रहा है? राइट? नॉटी टाइम्स मतलब डिफिकल्ट सिचुएशंस, राइट? इस एक्सट्रैक्ट से क्या समझ में आ रहा है? नॉटी टाइम्स, दैट मींस डिफिकल्ट सिचुएशंस, जो ओनर्स को अपने राइट, यानी कि जैसे कि कोई इंसान जैसे किसी और चीज पे हक हो, ये सिचुएशन की वजह से वो उस पे हक नहीं दिखा पा रहा, राइट? So the choice of casket according to her father's will, this is the most appropriate answer.
राइट? सबको क्लियर है, किसी को भी डाउट नहीं होनी चाहिए, राइट? किसी को भी डाउट नहीं है, अगर है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. फाइन. सो मूविंग ऑन टू द बी पार्ट. Who are referred to by owners? Owner से किसको रेफर किया जा रहा है? पोर्शिया को, बसानियो को, both first and second को, या फिर cannot say. So just let me know in the comments. जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा. Just tell me in comment section. Just tell me in the comment section. So guys, इसका आंसर yes. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. यहाँ पे ओनर्स कौन है? पोर्शिया एंड बेसानियो, राइट? दे बोथ ऑफ देम लव ईच अदर, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज ऑफ पोर्शिया's father's will, she cannot express herself, neither Bassanio can. Clear? So this is the thing and this is the right option. Now moving on to the C part, for the mentioned situation that is in the extract, whom does Portia blames? Portia किसे blame करती है इस situation के लिए? Bassanio's decision for not staying, their fortune, cannot say, both first and second. सोच समझ के बताना, right? सोच समझ के बताना कि ये situation के लिए Portia is blaming whom or what, right? किसे blame करिए या फिर क्या चीज को ब्लेम करे है? सो जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स. जल्दी से कमेंट करके बताओ. सो गाइस, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ. आज दिवाली है, हरी आप जल्दी जल्दी बताओ. कल दिवाली की सेलिब्रेशन भी तो करनी है, राइट? जल्दी से कमेंट करके बताओ. सो गाइस, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड. दोस हु वर सेइंग ऑप्शन नंबर 4, यू आर रॉन्ग, बिकॉज़ यहाँ पे बेसानियो इज नॉट टू बी ब्लेम. यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि बेसानियो को रुक भी जाता तो पोर्शिया कैन नॉट एक्सप्रेस और कैन नॉट टेल व्हिच वन इज द राइट कास्केट, राइट? सो वो अपने फॉर्च्यून को कोसती है. क्लियर है? फाइन. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द थर्ड एक्सट्रैक्ट. अब ये थर्ड एक्सट्रैक्ट है. देखो, एक्सट्रैक्ट बाय एक्सट्रैक्ट हम क्वेश्चंस कर रहे हैं सो दैट यू हैव द क्लियर पिक्चर ऑफ द एक्सट्रैक्ट. इससे पहले हमने एक्सट्रैक्ट वाइज नहीं की थी, हमने रैंडम क्वेश्चंस पिकअप किए थे एंड देन वी आंसर्ड देम, बट अब हमने एक्सट्रैक्ट वाइज सॉल्व किया है. फाइन. So we'll practice both in both ways. Fine. So for as I live upon the rack. Sorry, it will be rack. It's not rock. It's rack. Who is the speaker? Speaker कौन है? Bassanio है, Portia है, Antonio है, या फिर none of the above है? So just tell me in the comment section इसका आंसर क्या होगा? ABCD क्या होगा? Just tell me in the comments. जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर आपको क्या लग रहा है. So guys, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, Bassanio. क्लियर है? सबको क्लियर है, राइट? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द बी पार्ट. आपकी बी पार्ट क्या है? What was troubling the speaker the most? जो स्पीकर है उसे सबसे ज्यादा क्या ट्रबल कर रहा था, राइट? Delay in the choice of caskets, the attraction for the beloved, the will of the father, right? The will of the father, all of the above, right? So बताओ यहाँ पे क्या होगा? सबसे ज्यादा स्पीकर यहाँ पे कौन है? बेसानियो है, राइट? सो बेसानियो को सबसे ज्यादा क्या ट्रबल कर रहा था? जल्दी से सोच समझ के बताना मुझे इसका आंसर. एबीसीडी क्या होगा? जस्ट स्पीकर का नाम सोचो कि यहाँ पे स्पीकर कौन था, हमने जस्ट तो डिस्कस किया. स्पीकर कौन था? उसे सबसे ज्यादा क्या ट्रबल कर रहा था? उसने क्या कहा था? जल्दी से बताओ मुझे सोच समझ के. So simply option number 1, delay in the choice of caskets, right? बेसानियो को किस चीज से सबसे ज्यादा ट्रबल हो रही थी? He said, right, कि मैं रैक में हूँ. He was talking about कि जितनी ज्यादा डिले होगी उतनी ज्यादा उसकी बेचैनी बढ़ेगी, राइट? इतना ज्यादा उसका डर बढ़ेगा. So the right answer is option number 1, delay in the choice of caskets, right? Second, the third part. Name the literary device used in the above extract. Extract क्या है? देख लो यहाँ पे. For as I live upon the rack. यहाँ पे कौन सी literary device use की गई है? Just tell me. जल्दी से बताओ. Personification, metaphor, simile, none of the above. We don't have much time, right? So जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा. We don't have much time. जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ. So guys, इसका आंसर होगा option number 2, metaphor, right? Option number B, that is metaphor. Moving on to the fourth extract. When my torturer doth teach me answers for deliverance.
डस, पहली बात तो ये बताओ कि ये एक्सट्रैक्ट किसने कही थी। जब भी कोई एक्सट्रैक्ट आता है सबसे पहले सोचो कि ये एक्सट्रैक्ट उसने किसने कहा था, किसे कहा था और सिचुएशन कैसी थी। ट्राई टू क्रिएट दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन को इमेजिन करो एंड देन मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। तब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, देन यू विल बी एबल टू मार्क आउट द राइट ऑप्शन, अदरवाइज आपसे कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। सो ये किसने कहा था, जल्दी से बताओ। ये कहा था बेसानियो ने। क्लियर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डज पोर्शिया टेल्स हिम अबाउट द राइट कास्केट। क्या पोर्शिया उसे सही कास्केट के बारे में बताती है। यस, नो, कैनॉट से, नन ऑफ दीज, राइट। सो जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स, कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस इसका आंसर होगा एब्सोल्युटली नो, उसने नहीं बताया था, राइट। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नो। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द बी पार्ट, what preparations were made for the choice of the casket। casket choice के लिए किस तरीके की preparations were going on or what sort of preparations were made। curtains were drawn, music was played, both first and second, and last one is none of these। so guys simply इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट, ऑप्शन नंबर थर्ड। there is no sort of like you should not have confusion for this question। इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन की बिल्कुल भी जगह नहीं देनी चाहिए, राइट। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सिंपली ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों ही सही है, राइट। म्यूजिक का बहुत ज्यादा रेलेवेंस है फॉर दिस पर्टिकुलर कास्केट चॉइस। क्लियर। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द सी पार्ट, why was the defeat in choice of caskets was suited with the swan like end। what is the relation between them, right। ये जो कंपैरिजन था और व्हाटएवर लाइक व्हाट वी से जो रेफरेंस दी हुई थी, राइट, स्वान लाइक एंड की एंड द डिफीट ऑफ बेसानियो एंड द चॉइस ऑफ कास्केट्स। अगर वो हार जाता है तो म्यूजिक विल एक्ट एज अ स्वान लाइक एंड, ऐसा क्यों, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस और व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस, right, because swan has no voice at all, it sings only once, only, sorry, it sings only once, only before it dies, both first and second and last one is cannot save। so think about this question very keenly, we have to answer the most appropriate one, right। we are moving into the scenario of most appropriate option। ये जो scenario है, you have to jot down the most appropriate one, right। So what will be the answer? जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हरी अप, जल्दी से बताओ। सो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। सबको क्लियर है। स्वान की आवाज नहीं होती, ये बस स्वान तभी आवाज निकालता है व्हेन इट डाइज, बस वो एक बार आवाज निकालता है मरते टाइम। सो दिस वाज द meaning or this was the main, you can call the importance of swan like end। clear, सबको clear है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। now moving on to the fifth extract, with bleared visages come forward to view the issue of the exploit। who is the speaker, speaker कौन है, again you need to think कि speaker कौन है, लिसनर्स कौन है, ये कहाँ हुई थी, ये सारी चीजें नो वन विल कम एंड टेल यू कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स whenever you get to know about any particular line or any particular extract। and again मैं कहती हूँ कि वेनो याद रखो, extract को properly you should have the proper understanding of the scenes, each and every scene, right। so बताओ स्पीकर कौन है, बेसानियो है, पोर्शिया है, नरिसा है और ग्राशिनो। so just let me know first, जल्दी जल्दी बताओ, we don't have much time, right। so जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, just let me know in the comment section, hurry up। so guys इसका आंसर क्या होगा, स्पीकर कौन है जल्दी बताओ। so guys the speaker is straightforward Portia, right, Portia the speaker, so the answer is option number B। fine, now moving on to the B part, what does the issue of the exploit refers to। issue of the exploit किसको रेफर कर रहा है, right, trouble in the choice of caskets, outcome of the Hercules, it's not feat, it's FEAT, feat, that means luck, right, FEAT, feat, clear है सबको। all right, outcome of the match and both second and third। सोच समझ के बताना मुझे इसका आंसर। I want to know the right option, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। the trouble in the choice of caskets, right, यहाँ पे जो भी हुआ है सबको इग्नोर, just ignore it।
टाइपिंग मिस्टेक है, राइट? So it's feet. Feet means luck. I already told you. Fortune, नसीब, right? किस्मत. So यहाँ पे क्या चीज के बारे में कहा जा रहा है? Issue of the exploit. So इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा outcome of Hercules' feat. राइट देखो यहाँ पे ध्यान से with bleared visages come forth to view the issue of the exploit. यहाँ पे किसको इंडिकेट किया जा रहा है? Dardanian wives और the Trojan women जो यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे मतलब पोर्शिया की रेफरेंस दे रही थी. आप सभी को पता होगा, राइट? यहाँ पे इस रेफरेंस में वो किसको किससे कंपेयर कर रही थी? She was comparing herself with the Hesione, right? She was comparing herself with the princess Hesione. And she was comparing Bassanio with Hercules. And lastly, जो बाकी Nerissa and बाकी लोग थे attendants, she compared them with the Dardanian or the Trojan women, right? So यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे bleared visages, that means यहाँ पे किसको indicate किया जा रहा है? Straight forward यहाँ पे Dardanian wives को indicate किया जा रहा है. So mainly वहाँ पे वो कहाँ आई थी? They came to know the outcome of Hercules feat, यानी कि Hercules जीतता है या फिर नहीं, ये देखने के लिए. एंड इसका सेकेंड मीनिंग यानी कि इससे हम लाइक ये तो रहे स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग, और जो दूसरी मीनिंग निकलती है कि नेरेसा एंड बाकी लोग आते हैं बेसानियो को देखने के लिए कि बेसानियो जीतता है या फिर हारता है. तो देखो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पे मैच की बात की जा रही है. यहाँ पे तो किसी तरीके की मैच यहाँ पे मेंशन नहीं है. मैंने ये तो नहीं कहा कि कास्केट चॉइस की, राइट? अभी मैंने यहाँ पे तो कहीं पे क्लियर नहीं किया, राइट? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. सबको क्लियर है? फाइन. मूविंग ऑन टू द सी पार्ट. How did Portia stand for sacrifice? Portia sacrifice के लिए कैसे खड़ी है? She is hindered from choice of caskets, right? She cannot choose the husband of her own choice. She play the role of Hesione. None of the above. सोच समझ के मुझे इसका आंसर बताना. You should read. You should go through the lines very carefully. Everything is mentioned in the line itself. आपको लाइन देखनी है कहाँ पे क्या किया है. It's just all about the sequence, किस तरीके से वो लाइन को रखा गया है और how it is presented before you. So इसकी आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ. I'm waiting for your answers. So guys, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड. वो अपना हस्बैंड, दैट मीन्स शी कैनॉट, मतलब वो अपने हस्बैंड को अपने चॉइस से नहीं, मतलब जैसे वो चाहती थी अपने हस्बैंड आना, she cannot choose that person. All went through her, all went through, everything was dependent upon the choice of caskets and hindered from the choice of caskets. वो तो अपना मतलब for herself, जो भी casket choose किसको करना है? सारे suitors को करना है. पोर्शिया को तो casket choose नहीं करना, right? So ये कोई sense नहीं बन रहा, right? ये गलत है, right? And she never played the role of Hesione. She just compared herself with Hesione. So the answer is option number B. सबको clear है? Fine. D part is who had the bleared face visages in the reference or comparison made by Portia. यहाँ पे जो रेफरेंस या फिर जो एग्जांपल दिया है पोर्शिया ने, यहाँ पे ब्लियर्ड विसाजेस किसके थे? ध्यान देना, मैं यहाँ पे रेफरेंस लिखा या फिर कंपैरिजन लिखा. मैंने ये नहीं कहा कि पोर्शिया ने किसको कंपेयर किया है, राइट? किससे इंडिकेट किया जा रहा है, राइट? मैंने कहा कि इस रेफरेंस में कौन है ब्लियर्ड विसाजेस, किसके ब्लियर्ड विसाजेस है? ब्लियर्ड मींस आंसू भरे हुए चेहरे. क्लियर? नेरिसा के, अटेंडेंस के, ट्रोजन वुमेन के, या फिर ऑल द अबव. सो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट डालना है. सो यू शुड चूज ट्रोजन वुमेन बिकॉज वी हैव मेंशन. यहाँ पे क्या हमने मेंशन किया है? रेफरेंस में या फिर उस कंपैरिजन में, राइट? सो क्लियर है सबको? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ वन. But being seasoned with a gracious voice obscures the shows of evil. Who is the speaker? यहाँ पे speaker कौन है? Just tell me in comments. पोर्शिया, नेरिसा, लॉन्सलॉट या none of these? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ. So guys, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. बिकॉज इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेसानियो, which is not mentioned here. Okay. Moving on to the B part. Which is obscured? Sorry. What is obscured by the gracious voice? Gracious voice से क्या obscure किया जा रहा है? क्या छुपाया जा रहा है? Unholy example said by the priest, dishonesty of any case, outward shows of something, all the above. So इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा simply option number B. Clear? Dishonesty of any case, corrupt case. ठीक है? किसी particular case की जो उसकी dishonesty होती है, फिर उसमें जो भी what we say gross, right? जो भी गलतियां होती है उसे छुपाया जाता है. क्लियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी.
Next one is where is speaker now? Now here came the venue. Speaker अभी कहाँ है? In a room in Portia's house, in the courtyard in Belmont, in the garden, in a street in Venice. So the answer is option number 1, in a room in Portia's house. सबको clear है? A होगा. Fine. Okay. Moving on to the 7th question. How many cowards whose hearts are all as false? ये एक्सट्रैक्ट है. इस पे क्वेश्चन देखो क्या है. To what are the hearts of cowards compared to? Cowards यानी कि जो डरपोक लोग हैं उनके दिल को किससे कंपेयर किया गया है? White as milk enriched with red blood, stains of sand, outer appearance of virtues. जल्दी से कमेंट करके बताओ. बहुत इजी है, आपको दिख भी रहा होगा इसका आंसर. So guys, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, stains of sand. मिट्टी का क्या होता है? Sand means रेत का, रेत की सीढ़ियां, right? Stairs. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. फाइन. बी पार्ट इज what do the cowards do? What do the cowards do to pretend that they are brave? They grow beards like Elshines. They wear a frown like Mars on their faces. Both first and second, none of the above. Simply इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. क्लियर है सबको? बहुत इजी थी, राइट? 3rd होगा. नेक्स्ट. Why does the cowards pretend to be valiant? Valiant means brave. कावर्ड्स खुद को ब्रेव दिखाने की क्यों कोशिश करते हैं? टू मेक देम सीम फॉर्मिडेबल, टू मेक देयर पर्सनालिटी गुड, टू फ्राइटन अदर्स, ऑल ऑफ दीस. सोच समझ के इसका आंसर मुझे कमेंट करो. क्या होगा इसका आंसर? सोच समझ के बताना. एबीसीडी क्या होगा? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. क्लियर है सबको? खुद को बहुत ज्यादा ब्रेव या खुद को बहुत ज्यादा डरावना, घातक दिखाने की कोशिश. क्लियर है? फाइन. Moving on to the 8th question, 8 extract. The skull that bred them in the sculpture, thus the ornament is but the gull's shore, right? What is being referred by skull? यहाँ पे skull से किसको रेफर किया जा रहा है या फिर क्या चीज को रेफर की जा रही है? The head of a beautiful face, skull of dead woman, head of Medusa, none of the above. जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ. बहुत इजी क्वेश्चन है. आई डोंट थिंक यू विल टेक मच टाइम इन आंसरिंग दिस. सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा. जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स. सो गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. राइट? सबको क्लियर है? यहाँ पे किसको रेफर किया जा रहा है? यहाँ पे विग से क्या मतलब, आपको याद होगा यहाँ पे क्या कहा गया था कि जो ब्यूटीफुल विमेन है जिनके बाल बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, हवा चलती है, उनकी बाल बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है पीछे से. सो लोग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हेयर्स है वो विग हो, किसी ऐसे इंसान का हो जो मर चुका हो, राइट? उसके सर से वो विग बनाया गया हो. क्लियर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आई मीन बी. नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गलीड? राइट? सी, ट्रेचरस, ब्यूटीफुल, लाइवली. जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा. जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स. So guys, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, that is treacherous. सबको क्लियर है? फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड sepulture? राइट? sepulture, sepulture, grave, tomb, both first and second या फिर inscription. So just let me know in the comment. जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा. So guys, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, both second and third. Right? Fine. Now we are moving on to the last extract. Look how far the substance of my pear dot wrong the shadow. Right? Clear है? सबको clear है? ये extract सबको समझ में आई या फिर किसी को difficulty है? Just tell me in comments. First question क्या है? Question है who is the speaker? Nerissa, right? And one more thing, यहाँ पे pear नहीं होगा. This will be praise, right? P-R AISE, it will be praise, right? First question क्या है? यहाँ पे speaker कौन है? Nerissa, Portia, Bassanio, servant, कौन है यहाँ पे speaker? Just tell me in the comments. The answer is option number 3. Clear है? Bassanio है. बहुत easy है, किसी को doubt नहीं होनी चाहिए. Fine. Next question is what the shadow refers to? Portia, Portia's portrait, Portia's character, all the above. जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा. Just let me know in the comments. जल्दी से कमेंट करके बताओ. So guys, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, right? क्लियर है सबको? Portia's shadow means उसका पोर्ट्रेट और उसका पिक्चर, काउंटरफीट. नेक्स्ट वन इज
तो व्हाट इज पोर्शियाज हेयर्स कंपेयर टू, पोर्शिया के बालों को किससे कंपेयर किया गया है? कॉबवेब से, इट विल बी gnats. Okay, spelling is incorrect. It will be I. आप सब मुझे बताओ इसकी स्पेलिंग क्या होगी? GNATS. It will be gnats. All right, gnats. GNATS. It's a कीड़ा, insect है. Golden necked या फिर both second and third. जल्दी से बताओ. थोड़ी सी tricky है, but you need to think about this. and आपको आंसर मिल जाएगी. Just tell me in comments किससे कंपेयर किया गया है? So definitely ऑप्शन नंबर 4 होगा. कॉबवेब से भी कंपेयर किया गया है, राइट? एंड गोल्डन नेक से भी कंपेयर किया है. मतलब क्या कहा जाता है कि पोर्शिया के बाल गोल्डन मेश है, राइट? इट्स लाइक गोल्डन मेश. और फिर वो कंपेयर करता है पोर्शिया के बालों से, बालों को कॉबवेब से, कि उसमें जब उसमें कीड़े फंसते हैं तो वो बिल्कुल पोर्शिया के हेयर जस्ट लाइक कॉबवेब से, कॉबवेब्स में जैसे कीड़े फंसते हैं उससे भी ज्यादा जल्दी पोर्शिया के मतलब पोर्शिया के बालों को देख के बॉयज या फिर मेल फंसते हैं. क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. फाइन, ऑल राइट. So guys, thank you so much for watching this video. We'll be meeting in the next video. Till then, stay safe, stay healthy, and keep learning and keep practicing. Thank you so much for watching this video. Happy Diwali to all of you. Thank you.